Hello student. Today we are going to detail further about vectors. It is a video second on the same topic. In this videos series we are discussing about vector, which is chapter number 10 of class plus 2 mathematics. In our previous video we dealt with few basics like what is a vector, what are types of vectors, how to represent the vector, है ना. In types of vector we did few or many kind of types, है ना, and remaining we are going to deal in this video, ठीक है. And if you have not seen the previous video, I will recommend to firstly go on for that, क्योंकि it will create a link to understand these concepts very well. Is that clear or not? So you can find that first video on my channel, or link for the video will be there in the description, or you can tap on this button and go for that video. Then come to this video and understand each and every concept. Clear? So let us start with this video. In this video we are going to discuss about few concepts like position vector, displacement vector, unit vector, then magnitude, then some examples on the same. Again, if we talk about first three concepts, position vector, displacement vector and unit vector, they are linked with the previous one. They are the types of vectors. Then we will find how to find the magnitude of a vector. So let us start with the first concept, that is position vector. So as name implies, position vector. Vector kisiga, vector is a quantity which have magnitude and direction both. Now I am saying position. Position kyun diya? Position is the location of something. Location of something with the reference to other things. For example, अपनी position बरनाला के अकॉर्डिंग या ਤੁਹਾਡੇ घर के अकॉर्डिंग कुछ हो रहा. अगर लेट्स से मैं अपनी एग्जांपल लेना, मेरी पोजीशन मेरे फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग कुछ हो रहा, आई एम नियर बाय टू दैम, ਤੁਹਾਡੇ अकॉर्डिंग कुछ हो रहा, आई एम वेरी फार अवे फ्रॉम यू गाइस, एंड जो कितने होर कोई बैठा उस तो कुछ हो रहा. जब मैं कਹਾਂ मेरी पोजीशन इस बोर्ड तो इन्ने डिस्टेंस है, बट इस कैमरे तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है. दैट मीन्स पोजीशन की होंगी आ लोकेशन ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस. तो पोजीशन वैक्टर की करूँगा, उस पोजीशन ਨੂੰ डिनोट कर ली यूज किया जाता. फॉर एग्जांपल ध्यान दियो, we have studied this 2D coordinates, yes or no, x dash, y dash. Let's say one person is standing over there. Let's say 1 and 5, where x coordinate is 1, y coordinate is 5. Now ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, what is this? बिल्कुल 0 0, it is origin. Now although ਇਹਦੀ पोजीशन अपने आप चा x1 y5, बट x1 क्यों क्योंकि ये 1 है. क्लियर? ओके. बट ये 1 क्यों आ? क्योंकि इतने की सीगा 0 सीगा. वी आर कंपेयरिंग एवरी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू 0. राइट जा रहा पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि इतने 0 से. मैं लेफ्ट जा रहा नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि इतने 0 से. मैं अब जा रहा पॉजिटिव है, बिलो जा रहा नेगेटिव है. दिस इज द रेफरेंस पॉइंट. इन 2D our position is with respect to this. Now I've just drawn one thing from here to here. I've drawn a vector, an arrow starting from origin to the point. This arrow is called to be vector. जिमें मैं तुम previous video च भी दस्या सी, the length will tell me the magnitude and arrow will tell me the direction. So it is representing this person, let's say person A is standing in this direction at this distance, and this is called to be position vector, which tells the position of anything with respect to origin. Let's say a place is there B, which is we can say 3, 2. Now this vector
from origin, this vector from origin again is position vector. क्यों? क्योंकि अब पोजीशन दस रहा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. लेट्स से सम पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर देयर. लेट्स सी. Let me draw the mark the point. It will be, let's say, 2 or can say 2 comma, let's say anyhow -4. तो ये भी क्या है? पोजीशन वेक्टर है. Every arrow starting from origin to the point is a position vector telling me the position of that particular point from the origin. वो point origin तो किस डायरेक्शन चा कितने डिस्टेंस या is given by position vector. Is that clear or not? पोजीशन वेक्टर ਦੇ ਲਈ स्टार्टिंग हमेशा origin होगी एंड कितने भी हो सकता. एंड अगर मैं कमा this and this, all three vectors are called to be कोइनिशियल वेक्टर्स, क्योंकि सारा स्टार्टिंग पॉइंट किया सेम. इज दैट क्लियर और नॉट? गुड. सो पोजीशन वेक्टर किया, इट टेल्स मी द पोजीशन ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. नाउ कम ऑन टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. That is displacement vector. Again, name implies, let me draw over there. Displacement vector. Displacement ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ. ਲੈਟਸ ਸੇ ਮਾਰਕਰ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਗਾ ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਟੂ ਬੀ displacement. Like one person is over there, then second is there, so this length, this smallest part, not this, not this, the smallest distance between two is called to be displacement. ठीक है? वो मैं displacement vector, क्योंकि मैंने पता डिस्प्लेस करना, मूव करना. ठीक है? लेट्स से वन पर्सन अर्लियर वाज स्टैंडिंग ऑन दिस पोजीशन ए, देन ही वेंट टू पोजीशन बी. ठीक है? अर्लियर पोजीशन ए थे सी, वो बी ते चला गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया, एंडिंग पॉइंट बी हो गया. अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम ए टू बी, this vector is not starting from origin, it is starting from A ending at B, and this is called to be displacement vector. This is called to be displacement vector, which tells the displacement of something from one point to other point. It's called to be displacement vector. Or in another way we can say displacement vector which doesn't deals with the origin. अगर मैं इतने पोजीशन वेक्टर की गल करा, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है. क्यों? क्योंकि मैं दस रहा भी ओरिजिन तो कितने चला गया, बट क्योंकि ये ओरिजिन इन्वॉल्व है तो इन्हें एक आप स्पैशल कैटेगराइज करता, एक स्पैशल नाम देता, दैट इज पोजीशन वेक्टर. अगर वेक्टर किसी भी दो डिफरेंट पॉइंट्स के विच है जिहदे ओरिजिन नहीं हैगा, एंड दैट इज कॉल्ड टू बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. Is that clear or not? So these two, 1 2 3, these three are position vectors, whereas this is displacement vector. Let's say अगर कोई चीज़ मूव होके इधर हुई है at point C, then B and C is also a position vector. Whereas if this is OC, OB, OE are position vectors, AB, BC are displacement vectors. Is that clear or not? So position is with respect to origin and displacement can be between any two points. Clear? Now how to represent the vectors? अगर मैं displacement vector की गल करा तो इन्हें represent करना बहुत easy होता. For this vector, what is the starting point? A. So write the starting point. What is the end point? B. Write the end point and draw an arrow above them. So it is AB vector, displacement vector. लेट्स से अगर मैं इनू डिनोट करना, हाउ आई विल डिनोट दैट? स्टार्टिंग पॉइंट किया बी, एंड पॉइंट किया सी, उधर तक वेक्टर लगा था तब बी से वेक्टर, एक ही हो गया अपने का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. लाइकवाइज वी कैन आल्सो डिफाइन डिनोट पोजीशन वेक्टर्स. इट इज ओ सी वेक्टर, दिस इज ओ
A vector and this is O B vector. क्योंकि पोजीशन वैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ओरिजिन इनवॉल्व ਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ later on will come to know भी ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यूज़ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਆ बट फॉर द टाइम I'm just telling क्योंकि ओरिजिन इन्वॉल्व ਹੁੰਦਾ so we don't have to mention the origin क्योंकि मैंने पता स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा origin होगा so we can write it to be as C vector A vector B vector क्योंकि अगर C vector लिखा मैंने पता है it's starting from origin अगर A vector लिखा it is starting from origin by default but in case of displacement vector starting and ending both should be clearly mentioned क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ both are random points कोई कुछ भी हो सकता है so is that clear or not about position vector and displacement vector clear anything else about this okay I'm going to add on one point over there later on we'll discuss भी ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ just for the knowledge purpose ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਵੇ that is ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ A ਵੈਕਟਰ B ਵੈਕਟਰ A B ਵੈਕਟਰ yes or no it was A vector it was B vector ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ A ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਣਾ we can say it is final minus initial फाइनल मतलब फाइनल पोजीशन की जो आप इस तो लैके इधर मूव किए तो फाइनल पोजीशन की ऑफ बी वैक्टर सो दैट मीन्स फाइनल इज बी वैक्टर माइनस इनिशियल इज ए वैक्टर सो वी कैन राइट ए बी वैक्टर एज बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर इवन कितने भी कुछ लिखा हुआ मान लो सी डी वैक्टर सो वी कैन राइट इट टू बी एज डी वैक्टर माइनस सी वैक्टर जिथे सी डी किया डिस्प्लेसमेंट वैक्टर डी किया पोजीशन वैक्टर सी किया पोजीशन वैक्टर देखो क्योंकि ये दूजा लैटर इनरोल्व नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो की होगा ओरिजिन होगा सो इज दैट क्लियर और नॉट हाँ लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट दिस भी ये चीज़ आई किस तरह देयर आर फ्यू लॉ दैट वी गोना स्टडी जिन्होंने यूज़ करके अपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और वी गॉट दिस क्लियर और नॉट सो नेक्स्ट मूविंग ऑनवर्ड्स विल डिस्कस अबाउट यूनिट वैक्टर It's a big discussion. It's a lengthy discussion. क्या रखियो? Important है, बहुत important है. Talking about unit vector, first I will say very important kind of vector. Very important to learn about this. क्योंकि why it is important? Firstly. For non-medical students or medical students, you're going to see this vector a lot in your physics, in chapter 1, in chapter 3 as well. जितने भी electric field, magnetic field बारे पढ़ोगे, you are going to use unit vector a lot. ठीक है? Secondly, important क्यों हुआ? The point is, this vector is used to give the directions. This vector is used to give direction. Okay, we'll discuss each and everything, why it is used, why not others are used, and what is the thing and all. है ना? मैं वो भी रब कर रहा हूँ जा रखे हो. We'll study magnitude next, then few examples. ठीक है? Now, unit vector होता क्या सब तो पहला? As name implies, unit vector is unit vector. Vector means it having direction. It having magnitude. ਹੁਣ डायरेक्शन यूनिट का कोई मतलब नहीं होता भी डायरेक्शन यूनिट डायरेक्शन तो डायरेक्शन आ बट मैग्नीट्यूड कैन बी यूनिट यूनिट मतलब ओनली वन वे ओनली वन वैल्यू ठीक है तो यूनिट वेक्टर होगा कि इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम एंड ऑल इट्स यूनिट मीन्स वन वैल्यू दैट मीन्स यूनिट वेक्टर क्या होता इट विल बी हैविंग मैग्नीट्यूड क्यों क्योंकि वेक्टर इट विल बी हैविंग डायरेक्शन क्योंकि वेक्टर पर डायरेक्शन से कोई इंपैक्ट नहीं होना बट मैग्नीट्यूड से इंपैक्ट हो सकता है मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू 1 अ वेक्टर जिहदे नाल डायरेक्शन इनरोल्ड आ कोई फर्क नहीं हैगा कोई ज़्यादा डिफरेंस है बस
मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, दैट वेक्टर इज कॉल्ड टू बी यूनिट वेक्टर. So is that clear or not? What is unit vector? A vector whose magnitude is 1. Every vector जिसका magnitude 1 is called to be unit vector. Clear or not? Now next है unit vector. अगर अपन एक special name देता तो कोई ना कोई representation होनी है. जब अपन generally non unit vector नू इस तरह denote करते हैं a with vector. तो जो एक यूनिट वैक्टर में डिनोट किया जाता दैट इज डिनोटेड विद ए जस्ट अ मिनट बच्चे ए विद द कैप. यस दिस कैप, इफ यू कैन अंडरस्टैंड आई एम सेइंग कैप. तो जस्ट कैप को ये नहीं है भी कुछ डिफरेंट चीज़ आ गई. इट इज़ वेक्टर. उस फर्क है नगा इट विल डिनोट द वेक्टर. ठीक है, मैंने नहीं पता कि वेक्टर आ, बट इट विल स्पेशली डिनोट भी एक वेक्टर बट एक वेक्टर आ यूनिट वेक्टर आ. क्लियर. ये यूनिट भी हो सकता गा बट क्लियर नहीं है, बट इतने क्लियरली मैंशन अभी इट विल बी अ यूनिट वेक्टर. सो टू रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर वी यूज कैप्स. ठीक है. So clear as unit vector के अंदर vector whose magnitude is 1 having some direction and चलो इन भी रोक लो denoted with the a cap. I'm writing here. So clear or not? Now second question came in mind. Why unit vector is used to give direction to other vectors? Why not other vectors are used? क्योंकि वेक्टर तो डायरेक्शन हर एक ना होती है. द रीजन इज देयर व्हेन वी मल्टीप्लाई अ स्केलर विद अ वेक्टर. स्केलर जिसका मैग्नीट्यूड होंदा डायरेक्शन नहीं होंदी, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होंदे हैं. नाउ जिद्दां ਆਪਾਂ मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्वियस है इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा इनटू ऑब्वियस है इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन. नाउ दिस इज एंड. नाउ जो आप मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्शन इज समथिंग इट्स नॉट अ वैल्यू भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे. डायरेक्शन अटैच हो जाती है. ठीक है, भी नॉर्थ के नहीं आ रहा तो ओवरऑल वैल्यू नॉर्थ के नहीं होगी, ईस्ट के नहीं आ रहा तो ओवरऑल वैल्यू ईस्ट के नहीं होगी. मल्टीप्लिकेशन होती की थी हमेशा मैग्नीट्यूड से. फॉर एग्जाम्पल let's say this was scalar having value 5 and this was vector having magnitude 10 and north direction. Let's say now जितना मैं मल्टीप्लाई करूँ क्योंकि ये मैग्नीट्यूड 5 है इनटू इज द मैग्नीट्यूड 10 है एंड डायरेक्शन के लिए नॉर्थ है. दे विल गेट मल्टीप्लाइड, आंसर विल बी 50 to north. डायरेक्शन अटैच होगी बट एक्चुअली मल्टीप्लाई क्यों है मैग्नीट्यूड. नाउ इंस्टेड ऑफ दिस वाज अ वेक्टर जेड़ा यूनिट वेक्टर नहीं सी. अगर इतने यूनिट वेक्टर होंदा सेम स्केलर क्विकली बट इस बार आप किहदी गल करांगे यूनिट वेक्टर दी. ओके क्विक. इस दा मैग्नीट्यूड कितना होगा 5. इस दा मैग्नीट्यूड कितना होगा 1. गुड. एंड मान लो नॉर्थ डायरेक्शन सेम ना. जो मल्टीप्लाई होगा 5 विल मल्टीप्लाइड विद 1 एंड विल हैव अ नॉर्थ डायरेक्शन. इट विल बी 5 to north. Now what you gonna get is फर्क यही है जो मैं एक नॉन यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया बच्चे when I multiplied a non-unit vector with a scalar उसनो डायरेक्शन तो मिल गई, उसनो स्केलर नहीं रहा, उसने एक डायरेक्शन मिल गई नॉर्थ, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया चेंज हो गया, आइडेंटिटी चेंज हो गई उसकी. पहला 551 का मैंने नहीं पता हूँ ओरिजिनल स्केलर किसी का, अगर मैंने यदा नहीं पता आई कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम हेयर भी ओरिजिनल स्केलर वैल्यू की सी. बट इतने जो ध्यान देखो जो स्केलर ने यूनिट ना मल्टीप्लाई किया उसमें डायरेक्शन तो मिली ही मिली है बट वो मैग्नीट्यूड की भी की रहा सस्टेन रहा, चेंज नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसी 1 तो 1 किसी भी मल्टीप्लाई होकर किसी चीज़ में अल्टर नहीं करना. एंड दिस इज द
एडवांटेज ऑफ दिस, क्योंकि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, सो दिस वेक्टर इज यूज्ड फॉर गिविंग डायरेक्शंस। इज दैट क्लियर और नॉट? होपफुली क्लियर होगा नाउ दैट व्हाई वी यूज ओनली यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन पर्पस, नॉट द ऑर्डिनरी वेक्टर। क्लियर? नाउ क्विकली क्या किमें लिखांगे भी let's say we have a vector A which is a unit vector. Now I will say 5 units in A, so I will write 5 A cap. देखो मल्टीप्लाई करता 5 एक मैग्नीट्यूड से उसमें A cap ना मल्टीप्लाई करता। अगर मैंने थोड़ा और प्रॉपर लिखा, लेट्स से 5 इट्स अ वैल्यू। नाउ आई एम राइटिंग 5 A cap. What is this? चलो A cap की यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना 1, 5 की वैल्यू है जिसका मैग्नीट्यूड कितना 5, जिसे दोनों मल्टीप्लाई होगी इट बिकम्स अ समथिंग जिसका मैग्नीट्यूड 5 है तो डायरेक्शन की है A। इज दैट क्लियर? तो इस तरह अपन डायरेक्शन इस तो पता लगू A cap लिखा A cap डायरेक्शन है, A डायरेक्शन है, अगर B cap लिखा तो B डायरेक्शन है एंड सो दिस इज हाउ वी यूज अ यूनिट वेक्टर। क्लियर? अच्छा, कुछ मैथमेटिकल चीज़ें और मैं और दसना चाहूँगा। व्हाट इज़ दैट, अगर मैं वैक्टर की रिप्रजेंटेशन की गल करा तो यूनिट वैक्टर नूं इस तरह भी लिखा जाता है वन थिंग, और वी कैन से इट इज़ अ वैक्टर A हैविंग मैनू पता की होंदा 1 मैग्नीट्यूड। दैट मीनस जो आप एक वैक्टर के अराउंड दो लाइन्स लगा दें, दिस लाइन्स corresponds to magnitude। तो अरे क्या लिखता है एक वेक्टर आ जिसका मैग्नीट्यूड कितना का 1 है। सो दैट मीन्स इट्स अ वेक्टर, इट्स अ यूनिट वेक्टर। जो वेक्टर के अराउंड अपन लाइन्स लगाना था इट गिव्स मी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। क्लियर और नॉट? पक्का? गुड। नो एक चीज़ इतने होर ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज मतलब मेरे को लेके वेक्टर है 5, नो पे अटेंशन, इट्स अ वेक्टर 5 और 5 ਦੇ ਨਾਲ कुछ ना कुछ डायरेक्शन इनरोल्ड होगी एज एन A cap। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ 5 इज द मैग्नीट्यूड, A cap इज इट्स डायरेक्शन। दैट मीन्स वैक्टर दो चीज़ों मल्टीप्लाई करके बनता मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या दो चीज़ों टुगेदर लिख के बनता 5 इज मैग्नीट्यूड, A cap इज A cap। नो ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड 5 आ, बट यूनिट वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होंदा 1 होंदा। अगर मैं वैक्टर में यूनिट वैक्टर बनाना हो तो मैं सिर्फ इतना चेंज करना, मैं वो मैग्नीट्यूड कितना बनाऊंगा 1। एंड कैन वी डू दैट? कैन वी मेक 5 टू बी 1? यस, ईजिली। 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड करो कितना होगा 1, 10 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ डिवाइड करो कितना होगा 1, 13 30 ਨਾਲ डिवाइड करो कितना होगा 1। दैट मीन्स मैं A वैक्टर ਨੂੰ उसदे ही मैग्नीट्यूड नाल डिवाइड किया, यानी कि मैं 5 A कैप ਨੂੰ किस नाल डिवाइड कर रहा 5 नाल कर रहा, तो कट कटा के देखो लो क्या A कैप दे। दैट मीन्स A कैप इज इक्वल्स टू A वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी कि मैं इस तरह लिख सकता ना, हुणे अपन ने दस्या सीगा। सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग अ यूनिट वेक्टर। I can find unit vector of any vector by dividing the vector with its magnitude। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे, मैथमेटिकली भी देखेंगे, बट द थिंग इज दैट चीज़ों को क्लीयरली समझने की कोशिश करो। वैक्टर एक नॉर्मल वैक्टर आ, डायरेक्शन आ, मैग्नीट्यूड आ। यूनिट वैक्टर भी नॉर्मल वैक्टर, बस फर्क इन्ना का डायरेक्शन आ बट यूनिट मैग्नीट्यूड आ। हुण जे किसी 10 मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आ, मैं उन्होंने 1 एंड डायरेक्शन बनाना भाई ईजी आ, उन्होंने 10 नाल डिवाइड किया, 1 एंड डायरेक्शन हो गया, ऑटोमैटिकली वो वैक्टर बन गया यूनिट वैक्टर। दैट मीन्स अगर मैं यूनिट वैक्टर लिया यूनिट वैक्टर, then what we have to do is we will be dividing the vector with its magnitude। We are dividing the vector with its magnitude and it comes out to be unit vector।
बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अगे अपन बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करांगे एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉन मेडिकल और मेडिकल बैकग्राउंड आल्सो गोना यूज दिस इन देयर फिजिक्स चैप्टर और यूनिट 1 दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो क्लियर व्हाट इज यूनिट वेक्टर होपफुली। अपने को कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर भी होंगे मैं राइट दैम जिवें आप 2D च पढ़ते हैं अपने को एक्स एक्सिस होंगी है तो वाई एक्सिस होंगी है। तुसीं +1 पढ़ के आए हो तो उत्थे 3D पढ़िया होगा भी एक्स भी होंदा वाई भी होंदा ते जेड भी होंदा गा। एक्स भी होंदा वाई भी होंदा एंड जेड भी होंदा गा। नाउ एक्स एक्सिस एक डायरेक्शन आ तो इस डायरेक्शन नूं डिनोट कर लिए आप हमेशा की यूज़ करते हैं आई कैप यूनिट वैक्टर, क्योंकि मैंने पता मैं दसिया यूनिट वैक्टर डायरेक्शन ही दिंदा गा, मैग्नीट्यूड तो 1 रहना कोई ज़्यादा ऑल्टर करने वाला नहीं। सो आई कैप ऑलवेज डिनोट्स द एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लाइकवाइज वाई डायरेक्शन इज डिनोटेड बाय जे कैप एंड जेड डायरेक्शन इज डिनोटेड बाय के कैप। सो आई डिनोट्स एक्स एक्सिस पॉजिटिव, J denotes positive y axis and K denotes positive z axis. Is that clear or not? Okay, and thing is that अगर मैं y the opposite direction denote करना है that is negative y that is denoted by J itself with a negative sign. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ opposition। opposition ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਬਿਲਕੁਲ opposite ਹੋਣਾ। तो ऑपोजिट ਦੇ ਵਿੱਚ मैग्नीट्यूड सेम ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ठीक है बट वैल्यू बिल्कुल की आती है ऑपोजिट साइन दी होती है। मैं अपन पढ़े नेगेटिव ऑफ वेक्टर वन वेक्टर इज गोइंग दिस साइड ऑपोजिट नेगेटिव ऑफ दैट विल गो द अदर साइड। अगर ये जे अपर जा रहा तो माइनस जे विल बी गोइंग टू द डाउनवर्ड साइड ठीक है। एंड लाइकवाइज अगर आई पॉजिटिव के नहीं जा रहा तो यदा नेगेटिव वेक्टर की होगा बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस that is minus I cap will in x negative and likewise this will go minus k and negative vector again as I told you can check my first video to understand about what is negative of a vector. Is that clear or not everyone? Good. So ij k are the most basic unit vector that we are going to use in this chapter. In our next unit that is line and plane in your physics as well. So इन्ना तीनों बार बहुत चंगी तरह पढ़ना है। Is that clear or not? So this is something about unit. Next talking about this vector ijk, they are used over there as well. I know the video is going little lengthy but ये बच्चे concept बहुत important सीखे। कुछ इस तरह के कॉन्सैप्ट है जिन्होंने बारे बच्चों को फुल नॉलेज नहीं होती यूज़ करी जाते हैं एंड हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। इस करके थोड़ा टाइम लेके मैंने समझाने पे विल टेक 5 to 8 minutes मोर टू कवर ऑल द टॉपिक्स ठीक है। सो आई जे के आप जनरली मैं सुना कैसे गया भाई मैथमेटिकली वैक्टर की में लिखा जाता है भी आप भी देखेंगे दैट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ आई जे के। फॉर एग्जाम्पल जस्ट थिंक अबाउट a person is standing over there at 2,3. This is a position vector. If you remember A, we can say it is A vector. But when मैं A vector को लिख के मैं सकता so person went from here to here तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ना कुछ x च भी चेंज होया कुछ ना कुछ y ਦੇ ਵਿੱਚ भी चेंज होया yes or no x च कितना चेंज होया 2 y च कितना चेंज होया 3 that means 2 in the x direction 3 in the y direction. So this vector will be written as 2 in the x direction and 3 in y direction. So the way of writing is instead of writing this we say 2 x direction ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ i cap yes 3 y ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ j cap ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ so this is the position vector 2y cap plus 3j cap मान लो someone is standing over there
5,1 दैट्स पोजीशन बी। सो चलो कमा लिखवाओ बी वेक्टर की लिखा जाऊगा अपना इट इज 5 I cap plus 1 j cap. Is that clear or not? Okay, so it should be bache. And likewise we can write in 3D as well. Agar x y z position है here 1 3 5, so we can write this vector. Come on. Now from with respect to origin, x changes 1, y is 3, z is 5. So let's say this is नाम e name. तो e vector की होगा बच्चे I cap 1 into I cap plus 3 into j cap plus 5 into k cap. That is how we can write the vector in the form of ijk mathematically. Is that clear or not? Okay, quickly पर discuss कर लेने हम। अगर आप displacement vector लिखना हो we have to write down the displacement vector. You remember displacement vector? Yes, AB vector। तब हम क्या सीखा? It is B vector minus A vector। तो B vector में होनी दस्ता सीखा it is 5 I cap plus j cap minus a vector की होगा बच्चे 2 I cap plus 3 j cap. So it will be 5 I cap plus j cap minus 2 I cap minus 3 j cap. 5 minus 2 will be 3 I cap, j minus 3j will be minus 2 j cap. So this is the displacement vector in the form of I and j, final minus initial। अदर वे अराउंड अगर तुम देखो तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हाँ। चेक करो रे कितना आएगा 3। सो दिस इज अ चेंज इन एक्स। हम तो ये देखो ए तो बी गए यहाँ फाइनल एक्स कितना सी 5, इनिशियल एक्स कितना सी 2, तो 5 minus 2 कितना होता 3। इतने 3 सीगा इतने 1 से 1 minus 3 कितना होता -1। This is nothing but subtraction of x and y. That means generally we can say it is nothing but 5 minus 2 I cap plus 1 minus 3 j cap, that is 3 I cap minus 2 j cap। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, मैंने इस तरह भी। दैट मीनस मैंने वे सारे होने चाहिए। मैं यूज़ किहड़ा कर रहा डजन मैटर, मैंने हर एक चीज़ पता होनी चाहिए भी कि इसनों किस किस तरह मोल्ड किया जा सकता है। क्लियर? क्विकली आप ज़्यादा टाइम ना लेंगे, वीडियो बहुत लेंथी ज़्यादा हो। So this is how we write vectors, different vectors in the form of IJK। हुण एक चीज़ देखो, ये हमेशा कोऑर्डिनेट थोड़ी ना देते होंगे भी एक्स इधर वाई इधर जेड इधर, सीधा भी देता हो सकता। लेट्स से एक पॉइंट देता मैंने 2 5 पॉइंट के नाल बच्चे इंस्टेड ऑफ मेकिंग लाइक दिस, मान लो ये पॉइंट है ये पोजीशन वेक्टर है ना, मान लो वेक्टर नाम ए। क्लियर? वो की करते हैं दे डोंट राइट द कोऑर्डिनेट। ठीक है, वो ना तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे एंड दे विल डोंट शो यू द वेक्टर। वो की करेंगे they will just write 2,5 and below that they will write it is vector A। they will write 5 1 and they will write vector B। तब लोग ऑटोमेटिकली उत्थे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भी एक पॉइंट 2,5 तेरा A वैक्टर तो ऑब्वियस है किहड़ा वैक्टर आ पोजीशन वैक्टर आ, ते B आ 5 1 आ किहड़ा गा पोजीशन वैक्टर आ। मे बी अटैच भी हो सकता है इस तरह। ठीक है, तो इन दैट केस मैंने पता होना चाहिए भी अगर मैं ए वेक्टर लिखना है इट विल बी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आ 2 - 0 5 -0 कोई चक्कर नहीं आएगा, इट विल बी 2 I कैप प्लस 5 ठीक है। अगर मैं तो बी वेक्टर लिखना सो इट विल बी 5 I कैप प्लस
1 जे कैप। अगर ये तो ए बी वैक्टर लिखना मैं दसा सी फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल ए आ फाइनल बी आ, सो इट विल बी 5 माइनस 2 3 आई कैप 1 माइनस 5 माइनस 4 जे कैप। अगर बी ए वैक्टर लिखना होंगे ऑपोजिट, ना इनिशियल किया बी फाइनल किया ए, सो फाइनल माइनस इनिशियल है ना, फाइनल इन दिस फाइनल इज ए, दिस इज फाइनल, दिस इज स्टार्टिंग, so final minus start, 2 minus 5 is minus 3 I cap, 5 minus 1 is plus 4 j cap। अगर मैं इन्होंने दोनों के विचों माइनस कॉमन कटदा तो ये की बन जाएगा 3 I cap minus 4 j cap, that is minus of AB vector। So BA vector is just negative of AB vector, which we studied in first video, negative vectors, yes or no? सो कोई ज़्यादा नंबर नहीं कम किया, बट दिस थिंग शुड बी क्लियर। अगर एक पॉइंट दिता तो मैंने पता होना चाहिए यह पोजीशन वैक्टर होगा, अगर एक पॉइंट दिता पोजीशन वैक्टर, अगर उन्होंने अटैच किया तो ऑब्वियसली किहड़ा वैक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। क्लियर? हर बार कोऑर्डिनेट नहीं देते होंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, दैट वाज द बेसिक टू लर्न और टू ग्रिप द थिंग, बट हाउ टू यूज दैट, इट कैन बी इन एनी वे। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी राइट द वैक्टर इन द फॉर्म ऑफ I, J and K। क्लियर? Now quickly let's deal with magnitude। Sorry, now magnitude क्या होता है? मैं दसा magnitude is the value, तो कितों पता लगती है? लेंथ तो वेक्टर जिन्ना बड़ा हो मैग्नीट्यूड ज़्यादा, जिन्ना छोटा हो मैग्नीट्यूड क्या। Let me take the example again। Name this point as let's say 3 4, name this vector as let's say A vector। Now A vector is 3 I cap plus 4 J cap, remember। ਹੁਣ ਜਦੋਂ मैग्नीट्यूड मैं अर्लीयर भी दस चुके हैं, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाता है एक वैक्टर के अराउंड लाइन्स लगा के, तो मैं मैग्नीट्यूड लिखना गा, सो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर। ना मैग्नीट्यूड की होंदा गा, मैं दसा जी वैक्टर के नाल एक तो डायरेक्शन होंदी, एक लेंथ होंदी है, लेंथ की दसदी है मैग्नीट्यूड, दैट मीनस दिस लेंथ from origin to this is nothing but the magnitude। Okay, if you remember in previous we have drawn like this, we have said this distance is 4, this is 3। Can you observe any kind of triangle over there? Yes, it is right angle triangle। क्यों? क्योंकि angle in the 90 है, and this is acting like a base and this is acting like a perpendicular and this is acting like a hypotenuse। And we know about Pythagoras। It says hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square। That means hypotenuse square, if perpendicular is 4, 4 the square 16, base is 3, 3 the square 9। That means hypotenuse is equals to 25 the रूट, दैट इज 5। अच्छा नेगेटिव 5 नहीं लवांगे, लेंथ है इस करके। नाउ हाइपोटेनस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द वेक्टर एंड लेंथ ऑफ द वेक्टर इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सो दिस हाइपोटेनस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, दैट इज 5। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड आया किमें आई। अपने किते किते स्केयर किया 3 दा 3 4 दा 3 एंड 4 की सीगे x एंड y। दैट मीन्स इन जनरल वी कैन से अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कट रहा तो हर बार मैं उसनों यूज़ नहीं करूँगा। आई विल रब दिस लाइक दिस, नेवर एवर आई एम गोना यूज दिस। आई विल राइट डायरेक्टली 3 द स्क्वायर प्लस 4 द स्क्वायर द रूट विच इज 9 plus 16 the root, which is 25 the root, which is equals to 5. So is that clear or not? So this is magnitude of the vector.
We can take few examples over there on the same. We have said we have कुछ examples भी करेंगे. Let's say we have to find the magnitude of this vector. Let's say we have to find the magnitude of this vector as well. Let's say we have to find the vector magnitude of this vector as well. Now, एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, जे के मैटर नहीं करते, दे आर जस्ट चेंजिंग द प्लेन. एक्स वाई प्लेन तो वाई जेड तो जेड एक्स है ना एंड ऑल. अगर प्लेन की गल करा तो वो भी मैं फर्स्ट वीडियो च कुछ एक्सप्लेन किया, तुम उत्थे दोबारा देख सकते हो. ठीक है ना. सो दैट इज नॉट डीलिंग विद द वैल्यूज. ठीक है. अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कढ़ना हो, दैट्स अगेन सेम. 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर भी कितना होगा 25 प्लस ही होगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या होता प्लस रूट इट विल बी रूट ऑफ 30. So this is the magnitude of this. Likewise, what's the magnitude of B? Try to do it. Pause the video and check it out. What's your answer? Did it? Good. It will be 3 the square 9, 5 the square 25. Check करो उरे J सी उरे I and K यूज़ किया अपने प्लस माइनस बट द मैग्नीट्यूड इज सेम. सो प्लेन चेंज हो रही है, लेंथ वही है. तो 5 पॉजिटिव में भाग जो 5 नेगेटिव में हो, लेंथ इज सेम, डायरेक्शन इज ऑपोजिट. एंड लाइकवाइज जिवें आप 2 डायमेंशनल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड इन 3 डायमेंशन एज वेल इन द सेम मैनर. इफ आई वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इट विल बी 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर द रूट. It will be 4 plus 9 plus 16 the root. It is root 29. So finding magnitude is quite easy. It is simply the square of I, j, k coefficients. Their sum the root. Is that clear or not? ठीक है? So clear what is magnitude? And remember one thing. This is must. Magnitude is nothing but the length. Length is nothing but the clear. So hopefully as this सारे concept clear होंगे, starting from position vector to displacement vector, then to unit vector, then importance of unit vector, then different things that we did with unit vector, then magnitude, and finally few examples. Clear. So go through all the concepts and go through exercise as well, find the questions related to them, do them. In case you found any difficulty, message me, WhatsApp me, my number is there in the description, and we'll provide you guys with some of the worksheets as well later on. Till then, go through the concepts, go through all the things and learn them from the depth. And that is the only thing that's gonna make you success. Keep studying, keep learning, stay tuned, and subscribe the channel as well. Thank you.